وہ باقاعدگی سے اپنی شوٹ پر جاتی رہی۔ سچ شکر کہ اس سارے عرصے میں کوئی بدمزگی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آیا تھا۔ سیٹ کی اپنی ہی ایک دنیا تھی۔ آئے دن ایکٹرز اور ڈائریکٹر کے جھگڑے ہوتے۔ کسی حساس طبیعت رکھنے والے اداکار کو اگر سیٹ پر موجود کسی ورکر کی بات ناگوار گزرتی تو اگلے کئی گھنٹے کام رکا رہتا اور ڈائریکٹر سمیت سب لوگ معافی تلافی میں مصروف رہتے۔ کچھ اداکار اتنے منکسر المزاج تھے کہ ان کے ساتھ کام کرنا دنیا کا آسان ترین مرحلہ تھا۔ کچھ اداکار اکھڑے ہوئے ہوتے تو کچھ ہنس مکھ، کچھ کی عزت ہر جملے پر خطرے میں پڑ جاتی تھی اور کچھ دنیا پر لعنت بھیج کر کام کرنے والے لوگ تھے۔ غرض ہر شخص مختلف مزاج اور عادات کا مالک تھا۔ ڈائریکٹر کو ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھ کر کام جاری رکھنا ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن سلینا کا سین ملک کے نامور اداکارہ پارس بنگش کے ساتھ تھا۔ سین چند لمحات کا ہی تھا، لیکن اس کی پچھلی متنازع شہرت کو پارس نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ تھی کہ اس کے ساتھ چند لمحات کا سین کرنے پر بھی راضی نہیں ہو رہی تھی اور اتنا وقت تھا ہی نہیں کہ اس کی جگہ کسی دوسری اداکارہ کو کاسٹ کر کے سین مکمل کیا جاتا۔ وہ اپنے عارضی ڈریسنگ روم سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھی جب تک سلینا کو اس ڈرامے سے نکال باہر نہیں کیا جاتا۔ معاملہ کافی حساس ہو چکا تھا۔ وہ کسی کی بات سننے پر راضی نہیں تھی۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ اس کے کانوں میں اس بحث و مباحثے کی مبہم سی بھنک پڑی تھی۔ اس نے سیدھے صبح سرمد سے پوچھ لیا تھا۔ وہ بے بسی سے گہرا سانس لیے اس کے سامنے چند پل ٹھہرا رہا۔ وہ چاہتی ہیں کہ آپ کو اس ڈرامے سے نکال دیا جائے۔ واٹ؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ ایک ذرا سا سین ہے ان کا اور وہ مجھے اس پورے ڈرامے سے فارغ ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ سرمد نے اس کے سوال پر سر ہلایا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، پھر ہاتھ سینے پر باندھ لیے، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں پلیز، معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ آپ رہنے دیں، ہم بات کر رہے ہیں۔ سرمد نے گھبرا کر اسے منع کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ہی ان سے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی باتوں سے ماننا ہوتا تو وہ اب تک مان چکی ہوتی۔ اور کہنے کے ساتھ ہی وہ اگلے پل پارس کے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سرمد اسے روکتا، وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ پارس جو شیشے کے سامنے براجمان، ہاتھ میں اسکرپٹ تھامے نگاہوں سے پڑھ رہی تھی، پل بھر کو چونکی۔ پیشانی پر کئی ناگوار بل ابھر آئے تھے۔ وہ پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ آئی تھی، پھر اس کے ساتھ رکھی کرسی پر ٹانگ رکھ کے بیٹھی۔ کیا آپ ان سب کے سامنے بات کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے ایک نگاہ کمرے میں موجود عملے پر ڈالی تھی۔ پارس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ جو بھی کہنا ہے ان کے سامنے کہیں اور جلدی کہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ کیوں نکالنا چاہتی ہیں آپ مجھے ڈرامے سے؟ اس نے سیدھا سوال کیا تھا، بالکل کسی تیر کی مانند سیدھا۔ پارس اس کے بنا تحمید جوڑے کیے گئے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ کیا مجھے اس بات کا جواب دینا چاہیے؟ استضاح کرتا ہوا انداز، اکڑی گردن، اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اصولاً تو آپ کو جواب دینا چاہیے، کیونکہ اتنی کند ذہن آپ لگتی تو نہیں ہیں۔ یقیناً ڈرامے کی اسکرپٹ ملنے کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میں اس ڈرامے کی مرکزی اداکارہ ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتی تھیں کہ آپ کو میری جیسی متنازع اداکارہ کے ساتھ کام کرنا ہے؟ لمحے بھر کو ٹھہر کر پوچھا تھا، بالکل سکون سے۔ سامنے بیٹھی عورت کے چہرے پر پھیلی ناگواری اب کڑواہٹ میں بدلنے لگی تھی۔ کیا آپ توجہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں؟ اور آپ کا سوال ایسا تھا کہ پارس نے معتدل ہو کر اسکرپٹ سامنے ٹیبل پر پٹکی تھی۔ اپنی حد میں رہو، ہاؤ ڈیئر یو! اگر ایسا نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی عزت اتنی نازک ہے کہ میرے ساتھ چند منٹ کا سین کرنے پر خطرے میں پڑ جائے گی۔ کیا پڑ جائے گی؟ یقین دہانی کے لیے آخر میں معصومیت سے پوچھا تھا، اپنی شہد رنگ آنکھیں ذرا بڑی کر کے۔ ایسے کرتے ہوئے اسے لمحے بھر کو وہ ظالم یاد آیا تھا۔ اس نے سرد سے تھر جھٹکا، اپنی بکواس بند رکھو۔ میری عزت کے بارے میں اپنی زبان سے ایک لفظ مت نکالنا۔ تو آپ مان رہی ہیں کہ میرے ساتھ تھوڑا سا کام کر کے آپ کی عزت کو خطرہ نہیں ہوگا؟ الفاظ بدل کر، انداز بدل کر اس نے پھر وہی سوال کیا تھا۔ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی، گردن جھکا کر پارس کو دیکھا۔ اگر کوئی یہاں سے جائے گا تو وہ آپ ہوں گی میڈم، کیونکہ میں اس ڈرامے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ رسان اور قدرے قطعیت سے کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازے کے ساتھ کان لگائے سرمد کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور پھر اس کی جانب دیکھا، ہولے سے مسکرائی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ کیا؟ کیسے پتا آپ کو؟ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے۔ وہ سکون سے آگے بڑھی تو سرمد اس کے پیچھے لپکا، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا۔ اچھا، وہ حیران ہوئی، میں نے تو صرف یہی سنا ہے۔ اور اس کے ڈٹائی سے کہنے پر سرمد اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ چند پل بعد پارس واقعتاً اپنے ڈریسنگ روم سے نکل آئی تھی اور اب بغیر کسی پس و پیش کے وہ سلینا کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ سین مکمل ہو چکا
तो यकदम ही सेट पर मौजूद वर्कर्स ने तालियां बजाकर आज का काम बर्खास्त होने पर मुबारकबाद दी थी। वो भी मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा कर रही थी, लेकिन फिर अगले ही पल इसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। सेट पर इसके ऐन सामने वाजिद इस्तादा था, वही वाजिद जो अब इसे एक आंख नहीं भाता था। रात की मदन सरगोशियों में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे के आमने सामने विराजमान थे। पस मंजर में बजती धीमी मौसीकी और जर्द रोशन बत्तियों तले जगमगाता रेस्टोरेंट नरम गरम सा था। इन दोनों की कुर्सियां शीशे वाली बंद दीवार के साथ लगी थी। यहाँ से चेहरा फेर कर देखने पर नीचे पूरा शहर जलता हुआ नजर आता था। क्या कोई मसला चल रहा है काम पर? वाजिद ने नरमी से इस्तफसार किया था। साहिर इसे ज़रा फासले पर बैठा हुआ था। वो रूखा चेहरा लिए बाहर देख रही थी। मुझे अपने मसाइल हल करने आते हैं, उसी बेरुखी से कहा। वाजिद लम्हे भर को चुप सा हो गया था। क्या तुम्हारी बीवी को पता है कि तुम मुझसे यहाँ इस 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में मिल रहे हो? इसका तंज बहुत ठंडा सा था। वाजिद के चेहरे का रंग बदला। ओके, उसे नहीं पता। अगर वो इस मुलाकात की खबर हो जाने पर कोई भी जारहाना रद्द-ए-अमल देगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तुम या मैं? उसे ठहरे हुए अंदाज में पूछा था, हाथ बांध कर। मैं उसे हैंडल कर लूँगा। बेहतर, तुम ही उसे हैंडल करो तो बेहतर होगा। लेकिन मुसीबत ये है कि वो तुमसे हैंडल होती नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी की महरूमियों का बदला मुझसे लेती है और ऐसे वाक़यात रोनमा होने की ज़िम्मेदार सरासर तुम हो। तुमने उससे शादी करके उसे वो मान दिया ही नहीं जो एक बीवी अपने शौहर से चाहती है। तुम शादी करने के बाद भी मेरे पीछे आते रहे, अब भी यही कर रहे हो। क्या तुम दोनों मेरी ज़िंदगी से जा नहीं सकते ताकि मैं चंद दिन के लिए ही सही लेकिन सुकून का सांस ले सकूं? तेज से बोलते बोलते इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी और सांस पूरी तरह फूल गया था। कई लोगों ने पलट पलट कर इनकी जानिब देखा था। वाजिद का चेहरा अब के हित तक से सुर्ख हुआ था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो इसका मुंह देखकर रह गई थी। फिर बेयकीनी से इसे देखती हंसती। इसकी आंखों में कुर्चियाँ सी भर गई थी, इनमें जलन सी होने लगी थी। शादी, इस लफ्ज़ का मतलब भी मालूम है तुम्हें? बहुत ज़ख्मी अंदाज लिए कहा था इसने। तुम जानती हो कि मैं हमेशा तुमसे शादी करना चाहता था। बहुत कमज़ोर सी सफाई उभरी थी। वो चंद पल कुर्ची भरी आंखों से इसका वजीहा चेहरा देखे गई। तुम हमेशा से ऐसा चाहते थे वाजिद, लेकिन ऐसा करने के लिए जो गट्स दरकार होते हैं तुम इनसे बहरामंद नहीं हो। तुम में मुझे हासिल करने के गट्स कभी थे ही नहीं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें बस मेरे लिए खुद को बदलना होगा। तुम्हें ये अदाकारी छोड़नी होगी। मेरे ख़ानदान के लिए ज़रा इज़्ज़त का पेशा इख्तियार करना होगा तुम्हें बस। और इसने आओ देखा नताओ सामने रखा पानी से भरा ग्लास इसके चेहरे पर फेंक दिया। वाजिद यकदम इस अफ्ताब पर उठ खड़ा हुआ था। साहिर इसी सुकून से इन दोनों की जानिब देख रहा था। वह ज़ख्मी निगाहें उठाए इसे देखती रही। इसकी आंखों में ज़ब्त की सुर्खी उतर आई थी। मुझे किसी ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें खुद के लिए बदलने का कहे तो इसके मुंह पर पानी फेंककर वहाँ से उठ जाना। और गैस वॉट, मैं यही करने लगी हूँ। वो अगले ही पल उठ खड़ी हुई थी। एक नफरत अमेज़ निगाह इसके मकरू वजूद पर डाली। तुम कहाँ जा रही हो? इसने आगे बढ़कर इसका हाथ थामना चाहा, लेकिन वो इसका हाथ उसी तेज़ी से झटक चुकी थी। साहिर को इसे पीछे धकेलने का मौका ही न मिल सका। मुझे हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करना। खटिया आदमी, खटिया सियासतदान, खटिया है तुम्हारा सारा ख़ानदान। न शक्लें अच्छी हैं न अमाल, मनहूस चेहरे हैं तुम सबके। कहर नाजिल हो तुम लोगों पर खुदा का। बुलंद आवाज़ से इसे बद्दुआएं देती वो तेज़ी से दरवाज़ा धकेलती बाहर निकलती चली गई थी। साहिर इसके पीछे लपका था। बाहर निकलकर वो चंद पल गहरे गहरे सांस लेती रही, फिर भीगती आंखें बेदर्दी से रगड़कर कार की पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोलती अंदर आ बैठी। साहिर इसका इशारा समझकर अगली सीट पर बैठ गया था। इसने अपना सर सीट की पुश्त से टिका रखा था। साहिर ने एक निगाह इसके थके वजूद पर डाली। आप ठीक हैं? नहीं। क्या मैं आपको ठीक करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? इसने गहरा सांस लिया था। नहीं। आप इतनी उदास क्यों हैं? मुझे एक स्टूपिड गार्ड बहुत याद आ रहा है, इसने आहिस्ता से कहा, लेकिन साहिर ने सुन लिया था। क्या मैं उसे एक दफ़ा देख भी नहीं सकती? बस एक दफ़ा। इसे नहीं पता था कि इसकी आवाज़ इतनी भराई हुई क्यों थी। साहिर को लगा वो रोने से खुद को रोके हुए है। दुनिया इतनी जालिम क्यों है साहिर? और वो इस दुनिया से भी ज़्यादा जालिम है। एक दफ़ा भी मुझे फ़ोन नहीं किया, एक दफ़ा भी मेरी खैरियत दरियाफ्त नहीं की, एक दफ़ा भी नहीं सोचा मेरे बारे में। मोबाइल की स्याह स्क्रीन करब से देखते हुए इसने कहा था। आंखों की गुलाबी नमी गहरी होने लगी थी। रात कतरा कतरा पिघल रही थी। साहिर ने इसे अपार्टमेंट के बाहर उतारा, फिर खुद भी उतर आया। जो ही इसके साथ आगे बढ़ने लगा तो सलीना ने इसे हाथ से रोक दिया। वो इतनी टूटी हुई लग रही थी कि किसी भी तीसरे इंसान की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो गहरा सांस लेता पीछे खड़ा रह गया था। सुबह का मंजर इसकी आंखों के सामने पल भर को लहराया था।
सेलिना को किसी भी तौर तन्हा नहीं छोड़ोगे तुम दोनों। वो इनके सामने इस्तादा सख्ती से हदायत दे रहा था। वो और जार सर अस्बात में हिला रहे थे। वो कहे तब भी नहीं, ज़्यादा जिद करे तो एजेंसी की पॉलिसी बता देना, तब भी ना माने तो अपनी जगह मत छोड़ना। मुझे अगर किसी को ताही की खबर मिली तो मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये हफ्ता बहुत हसास है उसके लिए। हमला ओवर खात में बैठा होगा, मौका पाते ही वो इसे थड़ लेगा। तुम दोनों को इसे वो मौका नहीं देना है, समझ गए? इसने तने जबड़ों के साथ जवाब तलब किया तो इन दोनों ने तेज़ी से सर अस्बात में हिलाया। इसके जाते ही जार इसकी जानिब घूमा था। क्या वो ज़्यादा रफ हो गया है कि मुझे लग रहा है वो बस मोहतात है? यासिर की पुश्त देखते इसने कहा था। जार ने सर नफ़ी में हिलाया, पलट कर निगाह इसकी पुश्त पर डाली। वो बहुत उकड़ा हुआ और लिया दिया सा रहने लगा है। चंद दिनों से तो किसी गार्ड ने उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी है। ज़रूरत के अलावा वो कोई बात ही नहीं करता। क्या वो सेलिना के साथ जज्बाती तौर पर इन्वॉल्व था? साहिर को इसका जवाब नहीं पता था, इसीलिए काली चेहरा लिए खड़ा रहा। फिर कंधे उचकाकर अपने काम की जानिब बढ़ गया। मंजर गायब हो चुका था और वो अगला सांस भरता सेलिना के पीछे हो लिया था। इसके मना करने के बावजूद भी अगले रोज़ वो एजेंसी चली आई थी। ड्रामे के मुतल्लिक इसे नज़र से कुछ बात करनी थी। आसमानी रंग का लिबास जेबतन किए, बालों को हाफ बांधे, हल्का फुल्का मेकअप किए। आज इसकी शूट कदरे देर से शुरू होनी थी, इसीलिए वो फारग औकात में नज़र और यूविल से मिल रही थी। इसने अपने साथ रखे शॉपिंग बैग की जानिब देखा और फिर नज़र से माजरत करती उठ खड़ी हुई। इसका रुख एजेंसी के निचले फ्लोर की जानिब था। हाथ में पकड़े बैग के अंदर एक निगाह डाली, स्या मफलर और हाई हील्स। इसने गहरा सांस लेकर चेहरा उठाया था। लिफ्ट का दरवाज़ा सी की आवाज़ के साथ खुला और वह बाहर निकल आई। गार्ड्स इसकी आमद पर चौंके थे, लेकिन फिर जल्द ही संभल कर इसे खुशामदीद कहने लगे। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ सबके सलाम का जवाब देती बगैर रुके आगे बढ़ती जा रही थी। ज़रा आगे बढ़कर तवील राहदारी के बाद कैबिन्स का आगाज़ होता था। इसने मुश्किल मुस्कुराकर कदम आगे बढ़ाए थे, साथ साथ निगाहें भी दौड़ाई। बस एक बार वो नज़र आ जाए, बस एक नज़र। लेकिन वो कहीं भी नहीं था। वो एजेंसी शायद आया ही नहीं था। फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने वहाँ पर मौजूद बेशतर गार्ड से इसके मुतालिक पूछा। वो इसे ये दोनों चीज़ें खुद देना चाहती थी। इस बहाने कम से कम वो इसे देख तो लेगी। वो इस एक मौका को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। इसने इन चारों के कैबिन्स की जानिब कदम बढ़ाए। अंदर महज शेर विराजमान था, इंतहाई मसरूफ सा। इसने ठहर कर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो वह चौंका और फिर अगले ही पल इसे देखकर हवास बागता सा उठ खड़ा हुआ। गोद में रखे सपात नीचे जा गिरे। वो इसके यकदम उठने पर बेख्तियार हंसती थी। कैसे हो शेर? मैं ठीक, आप कैसी हैं? वो मुस्कुराकर सर हिलाती आगे बढ़ाई थी। शेर अब आगे बढ़कर इसके लिए कुर्सी पीछे की जानिब घसीट रहा था। सेलिना की निगाह बेसाख्ता इसके जूतों पर गई थी। इसकी मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। इसके स्याह जूते बहुत खस्ता से हो रहे थे। पॉलिश करने के बावजूद भी इनमें वो चमक नहीं आई थी। शायद वो बहुत इस्तेमाल किए गए थे और अब पुराने होने के बायस ऐसे दिख रहे थे। इसने हमदर्द सी निगाहें उठाकर इसका मासूम चेहरा देखा। वो इसके ऐसे देखने पर गुलाबी हुआ था। इंसान के माली हालात अगर जानने हों तो सबसे पहले इसके जूते देखने चाहिए। इंसान के जूते इसके बहुत बड़े राजदार होते हैं। तुमने एजेंसी कब ज्वाइन की थी? इसने नरमी से पूछा था। वो सर के पीछे हाथ फेरकर हल्का सा मुस्कुराया था। 2 महीनों से। इसने समझकर सर हिलाया, फिर यूं ही आसपास निगाह दौड़ाई। यासिर नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है वो? सरसरी से पूछा था, लेकिन शेर चौंक सा किया था। एक मोहतात सी निगाह दरवाजे पर डाली। आप उनके मुतालिक क्यों पूछ रही हैं? आप जानती हैं ना कि आप उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकती। जानती हूँ, और तुम सब भी जानते हो कि मेरा और यासिर का एक वर्क रिलेशनशिप था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मीडिया और आवाम बेवकूफ़ हो सकते हैं, लेकिन इस एजेंसी में मौजूद गार्ड्स नहीं। अब बताओ कहाँ है वो? इसके सबाव से कहने पर वो कसियाना सा हंस दिया था, फिर सर हिलाकर इसे देखा। वो नहीं आए आज, वो केस सॉल्व कर रहे हैं अरमान सर के साथ। शायद पुलिस स्टेशन गए हों। अच्छा, खैरियत? कोई काम था? वो उठ खड़ी हुई थी, फिर हाथ में थामे बैग पर एक निगाह डाली। नहीं, कुछ खास काम नहीं था, बस मुझे उसकी चीज़ें उसे वापस लौटानी थी। अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे दे सकती हैं ये चीज़ें, मैं उन्हें दे दूँगा। वो मुस्कुराई थी, फिर सर नफ़ी में हिलाया। थैंक यू शेर, लेकिन मैं ये इसे खुद देना चाहती हूँ। अब तुम काम करो, मैंने तुम्हें बिला वजह डिस्टर्ब कर दिया। हाथ हिलाकर कमरे से बाहर की जाने पड़ गई। शेर चंद पल नरमी से इसकी पुश्त को देखता रहा और फिर गहरा सांस भरता काम करने वापस आ बैठा। वो जो बाहर निकल रही थी, लम्हे पर को हनीफा के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखकर ठहर सी गई। अगले ही पल वो इनके ऑफिस का बंद दरवाज़ा खटखटा रही थी। अंदर से मसरूफ सा यस सुनाई दिया तो वह अंदर चली आई। हनीफा इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे।
اسی لیے اس کی آمد پر حیران سا چہرہ اٹھائے اسے دیکھتے رہے۔ کیا میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں انکل؟ اگلے کئی لمحات میں وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ کام ٹھیک جا رہا ہے آپ کا؟ جی انکل، خدا کا شکر ہے۔ کسی چیز کی ضرورت یا کوئی پریشانی؟ وہ ان کی نرمی سے پوچھنے پر اداسی سے مسکرائی تھی۔ میرے بابا نہیں ہیں انکل، لیکن اگر وہ ہوتے تو بالکل آپ جیسے ہوتے، اسی اداسی سے کہا تو حنیفہ کو اپنے چہرے کا رنگ یک لخت ہی بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ نامحسوس طریقے سے انہوں نے اپنے ٹائی کی گرہ ٹیلی کی تھی۔ انہیں لگا آفس میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ خیر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ آپ نے میری ماں کی ضمانت کروائی، میرے لیے زار اور ساحر کو گارڈز مختص کیا۔ آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ انکل۔ وہ شکر گزاری سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر انہیں الوداعی کلمات کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ حنیفہ اس انداز سے زخمی ہوئے تھے کہ وہ اسے آواز دے کر روک تک نہیں سکے۔ وہ اسے اپنی بیٹی نہیں پکار سکتے تھے۔ شاید یاسر ٹھیک کہتا تھا، اس راز کو راز رکھ کر انہوں نے محض خود کو اور سیلینا کو تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ شاید رشتوں کو وضع نہ کرنے والوں کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ خون کے رشتوں کو بھی حق سے نہیں پکار سکتے، اور یہ حق سے نہ پکارنا بہت اذیت ناک تھا، بہت کرپناک۔ شام ہوئی، وہ پولیس اسٹیشن سے ایجنسی آ گیا تھا۔ کیبن میں داخل ہوتے اس کی نگاہ جوتوں کے نئے ڈبے پر پڑی تھی۔ شیر ایک جانب ٹیبل کے سامنے براجمان تھا۔ یہ جوتے؟ اس نے سوالیہ سا آبرو اٹھایا۔ یہ سیلینا کی جانب سے میرے لیے گفٹ ہیں۔ دانتوں کی بھرپور نمائش کی، لیکن وہ اس کا نام سن کر رک سا گیا تھا۔ کیا وہ یہاں آئی تھی؟ شیر نے سر ہلایا تھا۔ آئی تھی، آپ کو پوچھ رہی تھی، آپ کی کچھ چیزیں لوٹانی تھی انہیں۔ اس کی پیشانی پر موجود بل گہرے ہونے لگے۔ یہ پاگل لڑکی، وہ ہلکا سا بڑبڑایا، لیکن شیر نے اس کی بات سن لی تھی۔ اس نے اسی سنجیدگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ پاگل نہیں ہے، عوام اور میڈیا بیوقوف بن سکتے ہیں، لیکن اس ایجنسی کے گارڈز جانتے ہیں کہ آپ دونوں کا ایک سراسر ورک ریلیشن شپ تھا، اس لیے اتنی احتیاط ایجنسی کے اس نچلے فلور پر ضروری نہیں۔ قدرے لاپرواہی سے کہا تھا۔ یاسر نے خاموش آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اور یہ بات بھی یقیناً اس کے انتہائی سمجھدار ذہن کی اختراق ہوگی۔ سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت اس نچلے فلور پر ہی ہے۔ کوئی ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن اسے یا تمہیں یہ بات کیوں سمجھ آئے گی؟ ایک چیز نے سمجھداری ہو تم دونوں۔ بگڑے موڈ کے ساتھ اسے بھی لتاڑا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ ویسے بھی خرگوش جیسا دکھتا تھا، ذرا سی ڈانٹ پر سکڑ جاتا۔ مجھے تو ان کی بات اس وقت ٹھیک لگ رہی تھی۔ ہلکی سی منمناہٹ ابھری تو یاسر نے اکتائی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ بالکل، اس وقت اس کی بات ٹھیک لگ رہی تھی، اور اب میری بات ٹھیک لگ رہی ہوگی۔ انتہائی بدھو لوگوں کی نشانی ہے یہ، جن کی اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہوتی، جو جس وقت چرب زبانی کرے اس کے پیچھے بغیر کسی سوچ کے چل پڑتے ہیں۔ اس کی ڈانٹ بلند ہوئی تھی۔ شیر نے سر بالکل ہی جھکا لیا، اب کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا۔ اگلے ہی پل اس کا فون پر پیغام ابھرا تو وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ انگوٹھے سے پیغام کھولا اور پھر بیزاری مزید گہری ہونے لگی۔ آج ڈنر کرنا ہے تم نے میرے ساتھ، یاد ہے نا؟ سلطانہ کا پیغام تھا۔ وہ ریسٹورانٹ کا پتہ اسے بھیج کر وہاں وقت پر اس کی منتظر رہنے والی تھی۔ اس نے سر کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور پھر باہر نکل آیا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ کچھ لمحات بعد وہ سلطانہ کے سامنے براجمان تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی، شہر کی روشنیاں بڑھ گئی تھی۔ بہترین ریستوران کی پرتعیش کرسیوں پر آمنے سامنے وہ دونوں براجمان تھے۔ اس نے جینز، سفید ٹی شرٹ اور پوری جیکٹ پہن رکھی تھی، دھلے دھلائے بال پیچھے کر رکھے تھے اور کلائی میں کڑی بندھی تھی۔ سلطانہ کی نگاہیں اس کی کلائی تک گئیں۔ وہ اس کے شوہر کی کھڑی تھی، وہ اس کھڑی کو پہچانتی تھی۔ اس نے رد عمل نہیں دیا، یوں ہی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یاسر کے رف حلیے کے برعکس وہ آج بہت تکلف سے تیار ہوئی تھی۔ نیوی بلو رنگ کی میکسی پہنے، کانوں اور گلے میں ہیرے جگمگا رہے تھے۔ مناسب میک اپ اور سرخ بالوں کو ایک جانب سے کان کے پیچھے کیے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یاسر نے اس کی تیاری پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تھی۔ اتنا فارمل ڈنر تو نہیں ہے؟ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر مسکرائی تھی۔ میرے بیٹے کے ساتھ ڈنر ہے، میں آج بہت اچھے سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آخر میں ذرا نرم سے کفکی سے پوچھا تو اس نے انہیں سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہیں، بس اتنی سی تعریف، اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے رکھنا بالکل بیکار ہوگا۔ وہ اس کی صاف کوئی سے محسوس ہوئی تھی، خوشی تھی کہ اس کے چہرے اور آنکھوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ سیلینا میرے لیے لکی چارم ہے، اسے محبت سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو وہ چونکا۔ میں اب اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گی، اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو تم بھی ہو جاؤ گے۔ اس کے کان خفیف سے سرخ ہوئے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، پھر کیسی بات ہے؟ یہ مت کہنا کہ تم اس کے لیے کچھ فیل نہیں کرتے۔ میں تم دونوں کے اتنے واضح احساسات رد کرنے پر اب اکتا رہی ہوں۔ اس سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے،
तुम से पूछो तो तुम भी मानने को तैयार नहीं होते। क्या पूछा था आपने उससे? इसकी आवाज़ में वाज़िया खुफकी थी। सुल्ताना को इसके अंदाज ने मज़ा दिया था। यही कि क्या वो तुम्हें पसंद करती है? फिर बेजार से कंधे उचकाए। इसने कोई जवाब नहीं दिया था, बस कह रही थी कि तुम इतने जिम्मेदार हो कि तुमसे इंसियत हो जाती है। यहाँ वो हंसी थी। यासिर ने आंखें बंद कर ली। लम्हे भर को इसे सेलिना के जवाब पर खुद भी हंसी आई थी। तुम दोनों क्या कर रहे हो ये? हम कुछ नहीं कर रहे, ये मेरी जॉब है और ह्यूमैनिज्म के तहत मुझे ये सब करना ही है। ह्यूमैनिज्म? वो महसूस हो रही थी। हाथ बढ़ाकर सामने रखा जूस उठाया, फिर इसे लबों से लगाए यासिर का चेहरा देखा। ह्यूमैनिज्म के तहत और क्या क्या करने का इरादा रखते हो तुम? ज़्यादा कुछ नहीं। अब ह्यूमैनिज्म के तहत हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा। इसके संजीदगी से कहने पर वो खुद भी मजाक तुर्क कर चुकी थी। बहरहाल वो ठीक कह रहा था। मैंने उससे तुम्हारे मुतालिक बात की थी, समझाया था उसे कि अब तुमसे मिलना उसके लिए अच्छा नहीं है। वो समझदार है। दोबारा उसने कोई कोताही करने की कोशिश नहीं की। इसने सर हिलाया था। अगर जो इन्हें बता देता कि वो इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा करती सुबह एजेंसी चली आई थी ताकि इसे इसकी चीज़ें लौटा सके, तो यकीनन वो इस ख्याल को तुर्क करने के मुतालिक ज़रूर सोचेंगी। खामोशी फिर से दरमियान में हाइल हो गई थी। दूसरी जानिब सेलिना अपनी शूट से फारिग हो गई थी। इसने मोबाइल उठाकर देखा और फिर चौंक सी गई। आंखों में बेयकीन सी चमक उतरी, लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उतर आई। इसने सबको अलविदा कहने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया था। मफलर और हील्स वाला बैग वो अपने साथ सेट पर ही ले आई थी। इसे वापस अपार्टमेंट जाने का वक़्त नहीं मिल सका था। इसने इजलत में पर्स कुर्सी से उठाया और बैग हाथ में लिए बाहर की जानिब बढ़ आई। साहिर इसके पीछे ही आ रहा था। वो इसे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती थी, बल्कि वो इसके बगैर भी कहीं नहीं जा सकती थी। चाबी दो मुझे। इसने पलटकर तहकुम से चाबी के लिए हाथ फैलाया तो साहिर ठिठक गया। आंखें सुकेड़कर इसकी जानिब देखा। आप कहाँ जा रही हैं? आप जानती हैं ना कि आप कहीं भी तन्हा नहीं जा सकती। मुझे मालूम है साहिर, लेकिन जब मुझे यासिर बुला रहा हो तो क्या तब भी तुम मुझे जाने नहीं दोगे? यासिर के साथ मुझे क्या खतरा हो सकता है? वो जल्दी जल्दी अब दरवाज़ा खोलकर कार के अंदर बैग और पर्स रखने लगी थी। साहिर बिल्कुल रुककर इसकी मसरूर सी इजलत को तक रहा था। आप कहीं नहीं जा रही हैं। यासिर आपको कभी नहीं बुलाएगा। उसके पास आपको बुलाने का कोई रीज़न नहीं है। इसने मदम होती मुस्कुराहट से इसका चेहरा देखा था। माथे पर कई बल उभर आए थे। तुम मेरी खुशी ज़हर कर रहे हो साहिर। उसके पास मुझे बुलाने का रीज़न है। मुझे उसकी चीज़ें उसे लौटानी थी। वो यही लेने के लिए मुझे बुला रहा है। साहिर ने एक गहरी निगाह अंदर रखे बैग पर डाली थी, फिर सेलिना की जानिब देखा। वो कदरे बेचैनी से इसके बदलते तासुरात देख रही थी। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा। और अब इसे साहिर पर शदीद गुस्सा आ रहा था। साहिर, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरी खुशी को यूं मेरे लिए खाकलूत मत करो। बिल्कुल, मैं आपके साथ ही जा रहा हूँ, भले आप मुझे ले जाने पर राज़ी हों या नहीं। ठीक है, लेकिन यासिर से मिलने में अकेली ही जाऊँगी। तो मेरे पीछे नहीं आओगे? ये डील अगर तुमने मुझसे नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। मैं टैक्सी करके चली जाऊँगी और तुम जानते हो कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। साहिर ने इंतहाई नापसंदीदगी से ही सही, लेकिन सर हिला दिया था। फिर चाबी लिए अगली नशिस्त तक चला आया। वो अब भरपूर मुस्कुराहट लिए पीछे बैठ रही थी। इसने एक नज़र इसे देखा और फिर गहरा सांस भरकर रह गया। इसने फ़ोन निकालकर निगाहों के सामने किया और फिर एक पैगाम तेज़ी से टाइप करने लगा। क्या सेलिना मैडम के पास तुम्हारी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें चाहिए? दूसरी जानिब मौजूद यासिर इसके पैगाम को देख कर रह गया था। यकीनन सेलिना ने साहिर को भी बता दिया था और अब वो इसे यकीन दहानी के तहत पूछ रहा था। इसने जवाबन हाँ लिखकर मोबाइल उलटते हुए रख दिया था। साहिर ने इसका जवाब देखा तो सुकून का सांस खारिज किया। आन की आन में जिस शक ने इसे आ घेरा था वो ख़त्म हो गया था। इसने कार अगले ही पल आगे बढ़ाई थी। सुनसान तंग गलियों में दुकानों के शटर गिरा दिए गए थे। इसने एक नज़र इन गलियों को देखा और फिर सेलिना की जानिब, जो बैग हाथ में लिए तेज़ी से नीचे उतर रही थी। साहिर इस लोकेशन को जानता था। ये एक ऐसी लोकेशन थी जो सब गार्ड्स को मालूम थी। एक ऐसी खुफिया जगह जहाँ पर वो अक्सर अपने ऑपरेशंस के लिए जमा होते रहे थे। इसने कार ज़रा आगे बढ़ाई और फिर अंदर बैठा रहा। इसे अब सेलिना के वापस आने का इंतज़ार करना था। गलियों में आगे बढ़ते हुए इसने फ़ोन कान से लगाते हुए दूसरी जानिब मौजूद यासिर को कॉल मिलाई थी। मुस्कुराहट थी कि लबों का साथ छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थी। दूसरी जानिब सुल्ताना के सामने बैठा यासिर इसकी बेवकत आती कॉल पर चौंका था। कुछ था कि वह खुद को फ़ोन उठाने से रोक नहीं सका था। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अनजान नंबर से मुझे मैसेज क्यों भेजा? लेकिन मुझे सोचने दो, तुम अपना और मेरा कॉल रिकॉर्ड क्लीन रखना चाहते थे,
इसी लिए मुझे किसी दूसरे नंबर से रब्ता किया। गुड, अब बताओ कहाँ हो तुम? मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। और रेस्टोरेंट में विराजमान यासिर आलम को झटका लगा था। मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया है। वो तेजी से बोलता उठ खड़ा हुआ। दूसरी जानिब मौजूद सेलिना जरा चौंकी, मुस्कुराहट मदम हुई। क्या मतलब? कुछ देर पहले ही तो तुमने एक पैगाम भेजा है जिसमें तुमने कहा कि तुम्हें अपनी चीज़ें वापस चाहिए। क्या वो तुम नहीं थे? वो गलियों में ज़रा आगे आ निकली थी। इसने चौंक कर अपने पीछे पलट कर देखा। अंधेरा, सुनसान रास्ता, किसी इंसान का कोई निशान ना था। पहली दफ़ा इसकी कनपट्टियों पर पसीना नमूदार हुआ था। दिल एक लम्हे के लिए तेजी से धड़का था। साहिर कहाँ है? तुम कहाँ हो? वो सुल्ताना को हौनक पना छोड़े आगे भाग रहा था। कतरे की घंटियाँ बज रही थी। इसे अपना सांस कुछ खोता महसूस हो रहा था। एक हफ्ता ख़त्म होने को था। मुलजिम का कूलिंग पीरियड ख़त्म हो चुका था। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं, गलियाँ तंग और अजीब सी हैं। मुझे वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। वो तेज़ी से वापस पलटी थी। इसकी टांगें कपकपाहट का शिकार थी। खौफ की एक सर्द लहर इसे खुद में उतरती महसूस हो रही थी। यासिर को पता था कि वो किस जगह की बात कर रही थी। तंगो तरीक दुकानों की गलियाँ यहाँ से ज़रा फासले पर थी। इसने कार को नज़रअंदाज किया और भागता हुआ आगे बढ़ता रहा। वापस जाओ साहिर के पास, अभी और इसी वक्त। मैं आ रहा हूँ। इसने तेज़ी से कदम वापसी के लिए बढ़ाए, लेकिन गलियाँ एक दूसरे में निकल रही थी। 0 बल्ब रोशन थे। इनकी हल्की और डिप्रेसिंग रोशनी इसे कुछ भी ठीक से देखने नहीं दे रही थी। वो तेज़ी से भाग रही थी। साहिर ने काफ़ी देर इसका इंतज़ार किया और जब वो वापस नहीं आई तो इसे अंदर जाना ही पड़ा। लेकिन सेलिना कहीं भी नहीं थी। इसने कदम तेज़ी से आगे बढ़ाए। इसके शकूक व शुबहात हकीकत में बदलने लगे थे। सेलिना भागते भागते रुक सी गई थी। कोई गलियों में से निकलकर यकलक ही इसके सामने आ खड़ा हुआ था। कोई कोई यहाँ है यासिर? और दूसरी जानिब मौजूद यासिर आलम को लगा जैसे सारी दुनिया इसके सर पर घूम रही है। वो दुकानों की गलियों में आ गया था। इसने सेलिना को आवाज़ें दी। साहिर इसकी आवाज़ सुनकर उस तरफ आ गया था। इसे बेयकीनी से देखा। क्या तुमने उसे यहाँ नहीं बुलाया था? इसने तेज़ी से सरनफी में हिलाया और साहिर समझ गया। वो दोनों कहे बगैर अगले ही पल गलियों में बट गए थे। एक सुनसान गली के सामने वो बिल्कुल साकित हुई खड़ी थी। इसके सामने खड़े शख्स का चेहरा वाज़ेह नहीं था। इसने चेहरे पर सूअर का मास्क लगा रखा था, चमड़े का बना इंतहाई भयानक मास्क। वो बेसाख्ता चीख कर वापसी के लिए भागी थी। वो भी इसके पीछे उतनी ही तेज़ी से भागा, बिल्कुल किसी अफरियत की मानिंद, किसी शैतान की मानिंद। इसकी चीखें गलियों में गूंज रही थी। वो मुखालिफ सिमत में तेज़ी से भाग रही थी और इससे पहले कि वो इसे गर्दन से दबोच कर पीछे की जानिब घसीटता, किसी ने इसे ज़ोरदार लात मारी थी। वो उड़ता हुआ दुकानों के मैले शटर से जा लगा था। इसने निगाहें उठाई। पूरी जैकेट में वो था। इसकी जानिब एक निगाह तक नहीं देखा। आगे बढ़ा, लेकिन मास्क वाला बंदा उठ खड़ा हुआ था। इसका कद बिल्कुल यासिर के बराबर था। चेहरे पर चढ़ा मास्क बहुत खौफनाक था। वो तीनों अपनी ही जगह पर ठहर गए थे। साहिर भी वहीं आ निकला था। यासिर की निगाहें इसके बाजुओं तक फिसली। इस पर कट मौजूद था। इसकी आंखें ऊपर उठती गई थी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो इसकी कनपट्टी पर पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत से मारकर मुखालिफ सिमत में भागा था। कनपट्टी से यकदम खून की बारीक सी लकीर इसके रुखसार से होते हुए गर्दन पर लुढ़की थी। इसके पास पिस्तौल नहीं था। वो ऑफ ड्यूटी था। इसने एक पल को पलटकर इन दोनों की जानिब देखा। आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ सका। अंधेरे से कोई पर्ची सी इसकी जानिब पड़ी थी। आग में बुझी पर्ची जो इसके पेट को चीरती रगों में जलन से बर्पा कर गई थी। इसने बेयकीनी से निगाह चुका कर देखा। सफ़ेद शर्ट पर यकदम ही खून के सुर्ख धब्बे उभरे थे। इसने हाथ रखा और इसका हाथ खून में लथपथ हो गया। सेलिना की खौफजदा सी चीख उभरी थी। इसने जख्म पर हाथ रखकर दबाया और फिर उसी तेजी से आगे बढ़ा। सेलिना को बाजू से थाम कर साहिर के हवाले किया। इसकी बसारत तकलीफ के बायस तंतला रही थी। जाओ, इसे लेकर जाओ। यहाँ पर कोई रिपोर्टर इसे देख न ले। जाओ साहिर, वह आखिर में चीखा था पूरी कुव्वत से, क्योंकि साहिर इसे साकित हुआ तक रहा था। वो जाने के लिए हिला तक नहीं था। वो इसे छोड़कर कैसे जा सकता था? पीछे से वो मखलूक इस पर पूरी तरह झपटी थी। वो उसी तेज़ी से मुड़ा था, फिर इसे खुद से दूर धकेला। वो लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ा था। इसने साहिर की जानिब देखा, फिर सेलिना की जानिब। तकलीफ पड़ने लगी थी। मैंने कहा जाओ, जस्ट गो। और साहिर ने सेलिना को लिए पीछे की जानिब खींचा था। वो चिल्ला रही थी। वो इसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तारीख गलियों में खून सा फैलने लगा था। इसके हाथ खून में लथपथ हो गए थे। हमला ओवर दोबारा इस पर छपटा था। एक ताकतवर मुक्का इसके जख्म पर मारा तो लम्हे भर को यासिर की पूरी दुनिया अंधेर हो गई। बर्छी ने रगों के कहीं अंदर अजियतनाक सी जलन बर्पा करती थी। इसने पूरी कुव्वत से इसे धकेलकर शटर से दे मारा था। सेलिना की एक और चीख बुलंद हुई थी।
प्लीज़ मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर तो जाने दो। साहिर वो मर जाएगा। लेकिन साहिर इसका इशारा समझता था। वो सेलिना को किसी भी तौर पर मुसीबत में नहीं देखना चाहता था। हमला आवर सेलिना के पीछे दौड़ा था, लेकिन यासिर ने इसकी टांगें पकड़ ली थी। वो बर वक्त धड़ लिए जाने पर औंधे मुँह जा गिरा था। साहिर बमुश्किल सेलिना को कार की पिछली नशिस्त पर धकेल रहा था। वो अब बुलंद आवाज़ से रो रही थी। साहिर मुझे जाने दो, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, उसे गोली लगी है, खुदा के लिए मुझे जाने दो। शीशे की खिड़की पर दोनों हाथ रखे वो आंसुओं से रोती जा रही थी। यासिर ने इसे एक नज़र देखा, बस एक नज़र, और फिर वो बमुश्किल उठ खड़ा हुआ। इसके कदम लड़खड़ाहट का शिकार थे। इसने हमला आवर को गिरबान से पकड़ा था और फिर इसने इसे पूरी ताकत से शटर के साथ दे मारा था। कोई जुनूनी सी कैफियत थी जो इस पर तारी हो गई थी। वो पलटा और जवाबन इसे भी दीवार से लगाया। वो ज़ख्मी है, उसका खून बह रहा है, मुझे जाने दो, वो अब तक कह रही थी। हमला आवर का मास्क हाथापाई में उतरने लगा तो वह करंट खाकर पीछे हुआ। इसने मास्क ठीक से लगाया। यासिर अब शटर के साथ लगा इसे तक रहा था। तुम कुछ कह नहीं रहे हो, जानते हो क्यों? इसने पूछा। हमला आवर ने इसकी जानिब चेहरा फेरा, खंजीर नुमा इंतहाई मकरू चेहरा। क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ। साहिर सेलिना को लिए आगे बढ़ गया था। अपने शिकार को हाथ से जाता देखकर वो इस तक बढ़ आया था। फिर गैज़ो गज़ब से बेकाबू होकर इसके ज़ख्म पर मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो यासिर ने इसका हाथ पकड़ लिया। फिर इसे दीवार से लगाया और घुटना मोड़कर जो ही लात मारी तो वह बुलबुला कर झुका। इसने इसे शर्ट से पकड़कर इसका सर शटर से दे मारा था। हमला आवर जो कोई भी था, सर पर लगने की वजह से बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। सुनसान गलियों में फूली सांसों की आवाज़ें गूंजने लगी। तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हें पकड़ूंगा और जल्द पकड़ूंगा। मुझे पता है तुम एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हो, मुझे जल्द पता चल जाएगा तुम कौन हो। इसने यासिर के ज़ख्म पर आखिरी दफ़ा ज़ोरदार मुक्का मारा तो वह घुटनों के बल गिरा। सूअर के मास्क वाला शख्स भाग गया था। पीछे तारीक गलियों में वो तकलीफ से बुलबुला रहा था। इसका खून शटर्स पर हर जानिब लग चुका था। वह ज़ख्मी था, वह ज़ख्मी है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे वापस जाना है। वह ज़ख्मी था। वो इस पर चिल्ला रही थी, लेकिन साहिर तो गोया पत्थर का बुत बन गया था। इसे यासिर का हुक्म हर हाल में मानना था। वो सेलिना को अपार्टमेंट छोड़कर वापस उसी के पास जाने वाला था। तारीक सुनसान गलियों में वो अब तक दराज था। खून था कि आसपास जमा होने लगा था। ज़ख्म की करपनाक तकलीफ़, सेलिना के आंसू, सब जैसे गुटमुट हो रहा था। इसने आंखें बंद की और फिर सब कुछ तारीकी की नज़र होता गया। उसी पल गलियों में आगे बढ़ते हमला आवर ने अपने चेहरे से वो मास्क उतारा था। फिर हाथ ऊंचा करके सर से बहता खून साफ किया। इसका चेहरा जाना पहचाना था, बेहद जाना पहचाना, बिल्कुल किसी माहिर नफ्सियात के ठंडे यक चेहरे जैसा। तारीक गलियों में इसने आंखें अगले ही पल खोली थी। सर पर जलते बल्ब इसे जलते बुझते महसूस हो रहे थे। जीन्स की जेब में अटसा फ़ोन साइलेंट होने के बायस मुस्तकिल जूं जूं कर रहा था। इसने बमुश्किल हाथों पर जोर देकर उठना चाहा। पेट और कमर में दर्द की एक शदीद लहर आर पार हुई थी। इसकी हल्की सी कराह निकली। जब्त से दांत जमाकर वो फिर से उठने लगा। सांस उखड़ने लगा था। इसने आंखें बंद करके सर 2-3 बार जोर से झटका। धुंधली होती बसारत कुछ दुरुस्त हुई थी। इसने तकलीफ से सुन पड़ते ज़ख्म पर हाथ रखकर मज़ीद खून को बहने से रोका था और फिर कांपती टांगों पर जोर देकर उठ खड़ा हुआ। एक जोर का चक्कर आने के बायस वो मैले शटर से जा टकराया था। फिर इसका सहारा लेकर चंद कदम आगे बढ़ा। सफ़ेद शर्ट इसके खून से दागदार हो चुकी थी। इसने ज़ख्म को दबाए रखा और फिर सफ़ेद पड़ते लबों के साथ आगे बढ़ने लगा। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से बसारत फिर से धुंधली पड़ने लगी थी। दर्द की शिद्दत गहरी होने लगी थी। कनपट्टी से पसीने की बूंदें फिसल कर गर्दन में लुढ़की थी। दस्ता लगने की वजह से निकला खून भी वहीं जम गया था। जेब में अटसा फ़ोन अब फिर से जूं जूं करने लगा था। इसने फूले सांस के दरमियान खून से चिपचिपे हाथ के साथ जेब थपथपाई और फिर इसने फ़ोन बरामद किया। कमर शटर से टिकाए रखी। गौर से देखने पर भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। इसे पता था कि वो किसी भी पल होश खोने वाला है। इसने फ़ोन उठा लिया, कान से लगाया और साथ ही ज़ख्म पर हाथ रखे आगे बढ़ने लगा। शटर का सहारा इसने अब तक ले रखा था। सेलिना कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हनीफा की आवाज़ गूंजी थी। इसने दिक्कत से थूक निकला था। जी, वो महफूज है, इसने कहा। तकलीफ़ के बायस आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट उतरी थी। हनीफा दूसरी जानिब जैसे चौंक से गए। तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? ठीक हूँ, छोटा सा ज़ख्म लगा है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इसने अगली बात सुने बगैर फ़ोन जेब में अड़स लिया था। फिर हिम्मत मुजतमा करके आगे बढ़ने लगा। इसके लब हर गुजरते पल के साथ सफ़ेद पड़ते जा रहे थे। दूसरी जानिब साहिर ने इसे अपार्टमेंट की इमारत के पास उतारा
और फिर इसने रोती हुई सेलिना की जानिब का दरवाज़ा तेज़ी से खोलकर इसे बाहर निकाला। वो बहुत स्पॉट था। सेलिना की किसी मुज़ाहमत का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो इसे हाथ से पकड़े आगे ही आगे बढ़ रहा था। वो इससे अपना हाथ छुड़वा रही थी, लेकिन बेसूद वो इसके ताकतवर बाजुओं का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसने अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे का पास कोड इंसर्ट किया और इसे अंदर धकेला। अभी उसी तेज़ी से दरवाज़ा बंद करने लगा था कि सेलिना की उंगलियां दरमियान में आ गई। वो दरवाज़ा नहीं बंद कर सका। मैं भी जाऊंगी, तुम मुझे इस अजियत में छोड़कर नहीं जा सकते। साहिर ने ज़ब्त से दरवाज़ा खोलकर इसे देखा। सुर्ख चेहरा, गुलाबी आंखें, मुसलसल गिरते आंसू, हिचकियाँ। आपने अपनी मनमानी का अंजाम देख लिया ना, इसलिए मना कर रहा था मैं आपको जाने से। आपको आखिर समझ क्यों नहीं आता कि ये मामला बहुत हसास हो चुका है, किसी की जान भी जा सकती है। एजेंसी से 3 एक्ट्रेस गायब हैं और एक का कत्ल किया जा चुका है। कत्ल समझती है ना क्या होता है। इसने इसे अंदर किया और फिर खुद भी अपार्टमेंट में चला आया। अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। सेलिना उसी तरह हिचकियों के दरमियान इसे देख रही थी। वो स्पॉट चेहरे के साथ बुलंद आवाज़ से बोल रहा था, ये सब मजाक नहीं है मैडम। जैसे दूसरी एक्ट्रेस का कत्ल हुआ है वैसे आपका भी कत्ल हो सकता है, या फिर आपकी वजह से जख्मी हुआ है। मैं उसे वहाँ इस हालत में छोड़कर इसलिए आपके साथ नहीं आया कि आप मेरे साथ वापस जाकर सारी मेहनत ज़ाया कर दें। क्या आपको अपने करियर की कोई फिक्र नहीं है? इसने उसी काटदार लहजे में पूछा था। वो पानी से भरी आंखें लिए इसे देख रही थी। मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, मुझे बस यासिर के पास जाना है। फाड़ में जाएं सब। साहिर ने लम्हे पर को अफसोस से नफ़े में सर हिलाया था। अपनी फिक्र नहीं है आपको कि यासिर की भी नहीं है। वो बस खामोशी से रोती रही। अगर वो मर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। और इसने करंट खाकर साहिर के बेरहम सवाल पर इसे देखा था। दिल सुकड़ कर फैला था। प्लीज़ नहीं, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहती हैं कि इसे कुछ ना हो तो यहाँ इंतज़ार करें मेरा। मैं वापस आकर आपको सब कुछ तफसील से बताऊँगा। ये सिर्फ आपकी करियर की बात नहीं है मैडम, ये यासिर की जमा पूंजी है। आपका एक लापरवाह कदम इसे खाक कर देगा। और इससे मज़ीद कुछ भी कहे बगैर वो तेज़ी से पलट गया था। साथ ही फ़ोन पर कोई नंबर मिलाता आगे बढ़ने लगा। वो बरसती आंखों से इसे जाता देखती रही। अपार्टमेंट का दरवाज़ा अपने आप ही चौखट से आ लगा था। इसने आंखें बंद की। वो जख्मी सा स्याह पर्दे पर उभरा। इसने तकलीफ से घबरा कर आंखें खोल दी थी। आंसू बेतहाशा रुखसारों पर गिर रहे थे। हाथ में मौजूद मफलर और हील्स का बैग इसने अब तक किसी मताए कुल की मानिंद जकड़ रखा था। वो लरसते कदमों से सोफे की जानिब आई और फिर आहिस्ता से ज़मीन पर बैठती चली गई। कपकपाता हाथ बैग की जानिब बढ़ाया। इसमें से स्याह सिलक का मफलर निकाला और फिर वो इस मफलर को आंखों से लगाए जाने कितने ही पहरों रोती रही। इसे आज सही मायनों में एहसास हुआ था कि यासिर को तकलीफ में देखना बिल्कुल रूह कब्ज़ किए जाने जैसा था। ठंडे पड़े लॉन्च में सिसकियाँ उसी तरह उभर रही थी। ठंडे फर्श पर जूतों के साथ बैठी एक लड़की मफलर आंखों पर रख के अब तक रो रही थी। साहिर ने वापस उस सुनसान गली में कदम रखा, लेकिन यासिर का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। वो वापस भागा। चंद गलियों में इसे ढूंढता रहा, इसे पुकारता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं था। इसका फ़ोन अब मुस्तकिल बजने लगा था। पहली 2 मिस्ड कॉल सुल्ताना की जानिब से थी, फिर 4 कॉल्स हनीफा और ज़ार की जानिब से की गई थी। इसने फ़ोन को जेब में अड़सा और तेज़ी से गलियों से बाहर निकल आया। कुछ ही फासले पर एक बुलंद इमारत वाला अस्पताल मौजूद था। वो इस तरफ को भागा। दरवाज़ा धकेलते ही इसने आगे बढ़कर रिसेप्शनिस्ट से यासिर के बारे में इस्तफसार किया था। उसने सर हिलाया और फिर इसे एमरजेंसी वार्ड का रास्ता दिखा दिया। एमरजेंसी वार्ड की सुर्ख पत्ती रोशन थी, शायद उसकी सर्जरी जारी थी। एक पल के लिए इसने गहरा सांस लिया और फिर पुश्त दीवार से लगाई। अस्पताल रात के पहर भी सफ़ेद बत्तियों से मुनव्वर था। मरीज़, सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर्स और मरीज़ों के घराने सब तेज़ी से आ जा रहे थे। इसने जेब में अड़सा फ़ोन निकाला और फिर इसे निगाहों के सामने किया। अगले कई लम्हात में वो हनीफा और सुल्ताना को खबर के मुतालिक आगाह कर रहा था। कुछ ही देर में सब अस्पताल की उस यकराहदारी में इकट्ठे हो गए थे। सुल्ताना बेयकीनी से सर बार बार नफ़े में हिलाती मुसलसल रो रही थी। हनीफा अलबत्ता खुद को संभाले हुए थे। ज़ार और शेर भी साथ ही परेशान से इस्तादा थे। हनीफा ने उन्हें यहाँ आने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी चले आए थे। वो उनकी टीम का सुप्रीम हैंडसम पार्ट था। वो उसे भला कैसे छोड़ सकते थे। सर्जरी मुकम्मल हो चुकी थी। डॉक्टर्स अब बाहर निकलकर हाथों से शफाफ बारीक दस्ताने उतारते इन्हें सर्जरी के मुतालिक ब्रीफ कर रहे थे। गोली खतरनाक साबित नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि अगर निशाना चंद इंच नीचे होता तो यासिर का गुर्दा ज़ाया हो सकता था। सुल्ताना फिर से रोने लगी थी। हनीफा ने बेख्तियार शुक्र का कलमा अदा किया था। फिर रोती हुई सुल्ताना को हमदर्दी से देखते तसल्ली देने लगे, ये कि वो अब ठीक था, इसे कुछ नहीं हुआ था।
साहिर अगले ही पल बाहर चला आया था। फिर फ़ोन पर नंबर मिलाकर कान से लगाया। फ़ोन तेज़ी से उठाया गया। वो ठीक है ना? प्लीज़ मुझे बताओ कि वो ठीक है। अपार्टमेंट के सर्द टाइल्स पर हील्स के साथ वो अब तक बैठी थी। आंसू खुश्क हो चुके थे, लेकिन रोने के बायस आंखों के पपोटे दर्द कर रहे थे और आंखें शदीद जल रही थीं। साहिर ने गहरा सांस लिया। वो ठीक है मैडम। और सेलिना को लगा किसी ने इसके दिल से पहाड़ उतार दिया है। शुक्रगुजारी के कई आंसू टूटकर रुखसार पर गिरे। इसने फटते जज्बात से मुंह पर हाथ रख लिया था। आंसू उबलते जा रहे थे। वो ठीक है। ओह खुदाया, वो ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया साहिर। वो ठीक हो जाएगा। आप ठीक हैं? इसने जल्दी जल्दी हाथ की पुष्ट से आंसू रगड़कर साफ किए। फिर सर अस्बात में हिलाया। लहजा मजबूत बनाने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ। अपार्टमेंट का दरवाज़ा ठीक से बंद है। इसने यूं ही चेहरा फेरकर दरवाजे की जानिब देखा था। हाँ, ऐसे नहीं, उठकर देखें। मुझे बताएं कि दरवाज़ा ठीक से बंद है या नहीं। साहिर की दी गई हदायत पर वह सर हिलाते उठ खड़ी हुई थी। हील्स से चलती हुई आगे बढ़ आई। दरवाजे को देखा। हाँ, ठीक से बंद है। कुछ भी हो जाए, आप किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। मैं हॉस्पिटल से फारिग होकर आपके पास चला आऊँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं आपको? फ़ोन रखते रखते यूं ही पूछ लिया था। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके फिर रखता हूँ। इसने सर हिलाया और फ़ोन कान से हटाकर आगे बढ़ आई। एक पाँव ऊंचा करके हील की बारीक अस्ट्रक खोली। फिर हाथ से जूता उतार कर ज़मीन पर रखा। दोनों हील्स से पैर आज़ाद करके वो लॉन्च में चली आई थी। लम्हे भर को अपने गोरे गुलाबी पैरों की जानिब देखा। वो भागने के बायस जगह जगह से ज़ख्मी लग रहे थे। ज़ख्मों में शदीद जलन का एहसास भी हो रहा था। वो बेदम सी सोफे पर गिर सी गई। कुछ लम्हात पहले तक इसके कदमों में बिजलियाँ सी भर गई थी। वो कितनी ही मसाफतें भाग कर ऊपर कर सकती थी। वो यासिर के लिए कहीं भी भाग सकती थी। इसे एक लम्हे पहले तक अपने करियर, इस इंडस्ट्री, यहाँ तक कि यासिर के साथ देख लिए जाने का एहसास तक नहीं था। इसे बस याद था तो ये कि वह ज़ख्मी हुआ था और इसकी वजह से हुआ था। पैरों में आबले से बन गए थे और अब इन आबलों में शदीद सोजिश हो रही थी। इसने तकलीफ से आंखें बंद की। ये वो क्या करने लगी थी? एक लम्हे पहले तक वो खुद को तबाह कर देने के दहाने पर थी। इसने पुश्त आहिस्ता से सोफे पर टिकाई और नीम तरास हो गई। ज़ख्म अब तक जल रहे थे। क्या वो खुद को तबाह कर देने की ताब रखती थी? क्या वो किसी और झटके को बर्दाश्त कर सकती थी? पैरों की जलन अब पूरे वजूद में उतरती जा रही थी। इसने आंखें खोली। इनमें गुलाबी सा पानी था, बिल्कुल हल्का सा पानी। नहीं, वो खुद को तबाह नहीं होने देगी। वो खुद को ऐसे ख़त्म होने नहीं देगी। ताज़ा ज़ख्मों की जलन गहरी होने लगी। इसने निगाह चुकाकर ज़ख्मों की जानिब देखा और फिर इसने एक फ़ैसला लिया, एक कठिन फ़ैसला। वो उठी और चलती हुई कमरे के अंदर चली आई। वॉशरूम का दरवाज़ा नीम पा था। इसने अगले ही पल अपना टूटा बिखरा सा सिरापा इस आईने में देखा था। इसके गहरे शहद रंग बाल कंधों पर उलझ कर बिखरे हुए थे। लिबास खराश ज़दा था। एक जानिब से आस्तीन फटी हुई थी। आंखें रो रो कर ज़ख्मी सी दुख रही थी और कदमों में होती जलन हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। वो अब यासिर से कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। वो इसे अपने मामलात से दूर रखेगी। वो साहिर की बात मानेगी। वो अब कोई भी बचकाना कदम नहीं उठाएगी। आगे बढ़कर इसने नलका चलाया और फिर तेज़ धार पानी से अगले ही पल चेहरा धोने लगी। मेकअप पानी के साथ बहने लगा था। इसने हाथ से चेहरा साफ किया और फिर चंद पल यूं ही खाली खाली नज़रों से खुद को देखती रही। और एक फ़ैसला था जो सेलिना मज़र को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। हस्पताल की सफ़ेद राहदारी वैसे ही रोशन थी। टाइल्स बहुत सर्द और जमात देने की हद तक ठंडे महसूस हो रहे थे। उसकी सर्जरी मुकम्मल हो चुकी थी और अब वो दवाइयों के ज़ेरे असर गहरी नींद सो रहा था। माथे पर एक अदद सफ़ेद पट्टी भी बंधी थी। हस्पताल के सफ़ेद गाउन में वो मुजम्मिल सा लग रहा था। बंद आंखों के साथ लेटा, दुनिया और माफिया से बेखबर। वह सब इसके आसपास इकट्ठा थे। सुल्ताना इसका बेजान हाथ थामे इसके बिस्तर के साथ लगी कुर्सी पर विराजमान थी। हनीफा और साहिर एक जानिब इस्तादा थे। साहिर और ज़ार एक जानिब काउच पर बैठे थे। हनीफा ने इन तीनों को आंख से इशारा किया तो वो तीनों इनके पीछे पड़ आए। अब वो तीनों हस्पताल के बाहर जीनों के उस पार मौजूद थे। स्ट्रीट बल्ब रोशन थे। वो चारों इसके नीचे इस्तादा रहे। कुछ पल जैसे खामोशी छाई रही थी। किसने किया है? हनीफा की भारी सी आवाज़ उभरी थी। सबका रुख साहिर की जानिब था। गलियों में अंधेरा बहुत था और उसने मास्क पहन रखा था। किस किस्म का मास्क? चमड़े का मास्क था, सुअर की शक्ल का। यकदम ही शेर के चेहरे पर कराहियत सी उभरी थी। ज़ार ने बेचैनी से सर झटका था। साहिर बगैर असर लिए सीधे चेहरे के साथ कह रहा था, उसे हमारी एजेंसी के खुफिया स्पॉट का इल्म कैसे हुआ? यासिर ठीक कह रहा था। वो एजेंसी का ही कोई बंदा है, वही जिसे मैंने उस रात कैबिन्स के दरमियान से भागते देखा था।
वो और ये शख्स दोनों एक ही हैं। अब के वो तीनों चौंके थे। हनीफा ने आबरू सकेड़ कर इसे देखा। तुम्हें कैसे पता? इन दोनों के भागने का अंदाज बिल्कुल एक सा था। तुम ज़ार, तुम कहाँ थे? क्या मैंने तुम्हें और साहिर को सलीना की हिफाजत के लिए मुकर्रर नहीं किया था? हनीफा की आवाज़ में अब के नापसंदीदगी सी थी। ज़ार का चेहरा यकदम शर्मसार से सुर्ख हुआ था। साहिर ने गहरा सांस लिया। ज़ार की कोई गलती नहीं है यहाँ। सेलिना ने इसे अपने काम से भेजा था। हनीफा पर जैसे खड़ो पानी पड़ गया था। ऐसा क्या ज़रूरी काम आन पड़ा था कि इसे तुम्हें भेजना पड़ा? उनकी मेकअप किट रह गई थी सेट पर, बस वही वापस लेने गया था मैं। उनका मानना था कि मेकअप हर एक शय से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक एक्ट्रेस के लिए तो मेकअप सांस लेने का काम देता है। इसने सेलिना की जानिब से छाड़ा किया फ़लसफ़ा मुनमुनाती सी आवाज़ में हनीफा के गोश गुजार किया था। इन्होंने गहरा सांस लेकर सर हिलाया था। ओफ सेलिना, अब तुम तीनों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब हम ये केस खुद सॉल्व कर रहे हैं। पुलिस अपना काम करती रहे, लेकिन हमें उस हमला आवर को खुद पकड़ना होगा। यासिर की पहरेदारी के लिए मैं एजेंसी से गार्ड्स को भेज देता हूँ। उसकी हिफाजत बेहद ज़रूरी है। लेकिन तुम तीनों अब अपनी आंखें खुली और लब बंद कर लो। एजेंसी में से किसी पर भी इस मामले पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों ने ही समझकर सर हिलाया था। साहिर, तुम उस इंसान का स्केच बनवाओ। तुम उसे 2 दफ़ा देख चुके हो। स्याह मास्क वाला स्केच बनवाओ। उसकी जो भी जिस्मानी तफसीलात हैं वो आर्टिस्ट को दो और एक खाका तैयार करवाओ। ज़ार और शेर, तुम दोनों अपने कैबिन्स में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करो। 24 घंटों की फुटेजेस को जांचो। कौन कितनी मरतबा बगैर किसी वजह के तुम्हारी चीज़ों में झांकता है और तुमसे बात पे बात बातें उगलवाने की कोशिश करता है। हमें अब ये सब खुद ऑब्जर्व करना होगा। इनके हुक्म सादर करने पर इन तीनों ने रॉजर सर कहा था। फिर वो तीनों ही हनीफा के पीछे पड़ गए। कार की जानिब बढ़ते हुए हनीफा के कदम लम्हे भर को जंजीर हुए थे। सरदार, इस सारी भाग दौड़ में वो इन्हें यासिर के हादसे के मुतल्लिक मतला करना तो भूल ही गए थे। इन्होंने तीनों को इशारा किया तो वो तीनों अपनी अपनी कार्स की जानिब बढ़ गए। वो पीछे अब अपने फ़ोन की स्याह स्क्रीन को खामोशी से तक रहे थे। कसाफत जैसे गहरी हो गई थी। हॉस्पिटल के ठंडे मुटियाले रंग की दीवारों वाले कमरे में वो गुमसुम से इसे देख रही थी। वो रोती रही थी, लेकिन अब आंसू खुश्क हो गए थे। गुलाबी हुई नाक दहक रही थी। इसे कुछ लम्हात कबल ही रूम में शिफ्ट किया गया था। वो इसका हाथ अपने रुखसार से टिकाए बैठी थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हस्पताल इतने सर्द होते हैं, इतने सर्द कि इंतज़ार में टांगें जमने लगती हैं और आंखें पथरा जाने का खुदशा गहरा होने लगता है। तुमने वो अजियत कैसे बर्दाश्त की थी मेरे बच्चे? तुम उस अजियतनाक रात को सर करने के बाद अब तक ज़िंदा कैसे रहे हो? मुझे कभी समझ नहीं आया कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते रहे। क्यों मेरे मुंह पर हमेशा दरवाजे बंद करते रहे? क्यों मुझे हमेशा परे धकेलते रहे? मुझे नहीं पता था कि अस्पताल इतने सर्द होते हैं, इतने ज़्यादा। एक आंसू टूट कर रुखसार पर लुढ़का था। आंसू सीधा यासिर के हाथ पर जा गिरा था। तकलीफ पर इसका गला जैसे तंग पड़ने लगा था। सब स्याह धुंध पे लिपटता जा रहा था। इसे हर वो लम्हा याद आया जब वो यासिर तक पढ़ने की कोशिश करती और वो इसे थोर भाग जाता। हर लम्हा अज़ियतनाक था। मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए करब का बाइस थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी आगोश तुम्हारे लिए अस्पताल की सर्द राहदारियों जैसी थी। मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे। मुझे माफ़ कर दो। तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगी। मैं आइंदा कभी तुम्हें अपना चेहरा दिखाकर तकलीफ़ में मुब्तला नहीं होने दूँगी। मैं वादा करती हूँ बेटा, मैं ऐसा ही करूँगी। इसने आंसू रगड़ कर मुस्कुराते हुए कहा था। फिर इसके हाथ को एहतियात से बेड पर रख दिया। अब वो उसे चुपचाप देखते रहना चाहती थी, अपने प्यारे यासिर को। उसने बमुश्किल अपनी पलकें एक दूसरे से जुदा की थी। 1-2 दफ़ा पलकें चिपकाने के बाद उसे सफ़ेद रोशनी का एहसास हुआ था। मसनूई सफ़ेद रोशनियाँ, अंधेरा, रोशनी, फिर से अंधेरा। उसकी पलकें भारी होने लगी थी। अगली दफ़ा जब उसने आंखें खोलने की कोशिश की तो आसपास होती बातों की आवाज़ महसूस हुई। उसे जागता देखकर कोई उसके करीब चला आया था। कोई किसी डॉक्टर को बुलाने का भी कह रहा था। आवाज़ें, आंसू, खुशी, सब जैसे गुडमुड हो रहा था। कुछ देर बाद इसे वाक़तन मुकम्मल तौर पर होश आ गया था। उसकी पलकें अब के इतनी भारी नहीं थी। उसने आसपास गर्दन आहिस्तगी से घुमा कर देखा। सरदार, अरमान, सुल्ताना तीनों इस्तादा थे। अरमान अब डॉक्टर से उसकी रिकवरी के मुतल्लिक बात कर रहा था। दादा और सुल्ताना इस पर चुके कुछ कह रहे थे। इसकी समात को अल्फाज तो महसूस हुए, लेकिन समझ नहीं आया कि वो दोनों क्या कह रहे थे। कुछ पल बाद इसे वाज़िह तौर पर आवाज़ सुनाई देने लगी थी। यासिर बच्चे, कैसे हो अब? ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही ज़ख्म में? सरदार की मेहरबान सी आवाज़ इसे अपने कान के करीब महसूस हो रही थी। इसने उन्हें देखा। इनकी आंखें नम थी। शायद वो रोते रहे थे। इसने चेहरा घुमाकर सुल्ताना को देखा। वो अब गहरे गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करती बमुश्किल मुस्कुरा कर इसे देख रही थी।
लेकिन आंसू थे कि अपना रास्ता हमेशा ढूंढ लिया करते थे। इसने चेहरा सरदार की जानिब घुमाया, फिर आहिस्ता से कहा, क्या डॉक्टर ने नहीं बताया कि मुझे रिकवर करने के लिए तन्हाई और सुकून की ज़रूरत है? और वो जो मुस्कुरा कर नरमी से झुके इसे सुन रहे थे, ये क्लक चौंके। इसे देखा, वो संजीदा था और इन्हीं ठहरे हुए तासरात के साथ इन्हें देख रहा था। वो जैसे बेबसी से हंस दिए थे। मुझे लगा था तुम मुझसे इंतहाई कोई फिल्मी सा जुमला बोलोगे, लेकिन तुम तो ओह यासिर। वो बेबसी से हंसते जा रहे थे। कितना डर गया था इनका दिल। फिर आंखों में ठेरों कुफ्की समेटकर इस बदतमीज़ की जानिब देखा। मुझे लगा था मैं अपना दूसरा बेटा खोने जा रहा हूँ। तुमने ये जॉब करने से कबल मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी हिफाजत करोगे। ये हिफाजत कर रहे हो तुम। बहुत हो गया लाड प्यार। वो इस पर गरजे थे। डॉक्टर और अरमान ने चौंक कर इनकी जानिब देखा। सुल्ताना भी इन्हें ऐसे ही देख रही थी। नहीं चौंका था तो बस यासिर नहीं चौंका था। आप मरीज से ऐसे बात नहीं कर सकते। इनकी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर की हल्की सी तनबीहा पर इसने सरदार को जिताती निगाहों से देखा था, जैसे कह रहा हो, देखा मैं न कहता था छतरोल की ज़रूरत है आपके मरीज़ को फ़िलहाल। वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो ठीक होता तो दिल खोल कर हंसता, लेकिन अभी तो हल्की सी जंबिश भी तकलीफ़ दे रही थी। आप हैं कौन मरीज़ के? दादा हूँ मैं इस कम वक्त का। अरमान जल्दी से डॉक्टर को लिए बाहर के जाने पड़ गया था। मुबादा सरदार अपने जलाल से इसे भी पहरा बंद कर देते। दादा ही तो हैं बस, हल्की सी आवाज़ में कहा था यासिर ने। सरदार को तो गोया पतंगे लग गए थे। सुल्ताना ने हंसी तपाने की खातिर चेहरे पर हाथ रख लिया था। सिर्फ दादा। वो इसकी संग दिली पर गोया पुलपुलाए थे। इसने सुकून से सर अस्पात में हिलाया था। तुम ज़रा सेहतयाब हो जाओ। फिर क्या? इसने इनकी बात काटी थी। वो बेबसी से इसे देख कर रह गए थे। मुझे गुस्सा दिलाने के लिए क्या खसूसी तौर पर तंज करने की क्लास लेते रहे हो? इन्होंने एहतियातन पूछ ही लिया था। इस दफ़ा वो हल्का सा मुस्कुराया था, बिल्कुल हल्का सा। सरदार इसे इतने दिनों बाद मुस्कुराता देखकर जैसे हल्के फुल्के से हो गए थे। इसने यूं ही गर्दन फेरकर सुल्ताना की जानिब देखा था। मलिक लपास और थकी थकी सी आंखें। वो शायद खड़ नहीं गई थी। अब कैसा फील कर रहे हो? इसने सर हिलाया था। बेहतर। सुल्ताना बेटे, घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। तुम 2 दिन से एक टांग पर खड़ी रही हो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। सरदार के कहने पर वो चौंका था। 2 दिन? क्या वो 2 दिन बाद होश में आया था? 2 दिन? इतना लेट होश क्यों आया मुझे? तुम्हें इन पिछले दिनों में बहुत दफ़ा होश आ चुका था, लेकिन तुम दवाइयों के ज़ेरे असर नीम गुनूदगी में थे। सुल्ताना बेटे जाओ, आराम करो, मैं यासिर के पास हूँ। इसने अब के चेहरा सुल्ताना की जानिब फेरा था, फिर खिंकार कर कहा, आप आराम करें, यहाँ पर दादा है मेरे पास। ओके, लेकिन मैं शाम में फिर से आऊँगी। तुम मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकते। इसके जवाब देने से कबल ही सरदार सर हिलाकर इन्हें इजाज़त दे चुके थे। वो बाहर की जानिब पड़ी तो इसने माथे पर टेरों पर लिए सरदार की जानिब देखा। आपने उन्हें यहाँ वापस आने की इजाज़त क्यों दी? सरदार सुकून से इसे देखते रहे थे। क्योंकि वो माँ है तुम्हारी। दुनिया की कोई भी ताकत इसे तुमसे अलग नहीं कर सकती, तुम भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो किसी किस्म के खतरे से दो चार हों। अपने बेटे के पास उसे किसी किस्म का खतरा नहीं होगा। लेकिन एक मिनट, क्या तुम्हें उसी माँ की फिक्र हो रही है जिसकी तुम शक्ल देखने तक के रवादार नहीं थे? फिर चुपकर इसके सीने पर हाथ रखा, जैसे कुछ महसूस करना चाहा। क्या तुम्हारे सीने में दिल की जगह पत्थर नहीं मौजूद? छी, मुझे तो हमेशा यही लगता रहा कि तुम्हारे पास दिल नामी कोई चीज़ नहीं है। वो इन्हें आंखें उठाकर देखता रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दादा। मैं नहीं चाहता कि वो बिला वजह किसी भी मसले में मेरी वजह से फंसे। आप समझते नहीं हैं। मैं क्या नहीं समझता जनाब? वो जितना पेचोताप खा रहा था, सरदार उतना ही सुकून में थे। फिर इसने गहरा सांस लिया, हाथ से अपने पेट पर बंधी पट्टी को छूकर जख्म महसूस किया। आह, इसके छूने पर अंदर जैसे सुइयां सी चुभी थी। जिसने मुझे ज़ख्मी किया है वो मेरे आसपास मौजूद लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी जॉब ऐसी है कि बहुत से दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं। उन्हें बस किसी ट्रैकर की ज़रूरत होती है। वो किसी का घराना तबाह करने से भी नहीं चूकते। आवाज़ आहिस्ता थी। सरदार गर्दन चुकाए मोहब्बत से इसका चेहरा देख रहे थे। तुम हो ना हमारी हिफाजत करने के लिए? कोई कैसे हमें हाथ लगा सकता है? तुम्हारा गुस्सावर चेहरा देखकर कोई हमें हाथ लगाने की जुर्रत कर सकता है क्या? आपको भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ठीक हूँ, कुछ ही दिनों में कई किलोमीटर तक भाग भी सकूँगा। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम सुपरमैन हो? मैं यासिर हूँ। बड़ा कोई तीर मारा है आपने यासिर होकर। सरदार का ठंडा सा अंदाज देखकर इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी भी तौर यहाँ से टलने वाले नहीं थे। उसी पल अरमान दरवाज़ा धकेलता अंदर चला आया था। एक नज़र यासिर पर डाली। उसके माथे पर बल थे और नकुश कुछ बिगड़े बिगड़े से थे। उसने एक नज़र सरदार पर भी डाली। डॉक्टर्स का कहना है कि रिकवरी के लिए 2 हफ्ते दरकार हैं। उससे पहले तुम अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते। ज़ख्म अभी ताज़ा है।
اگر احتیاط نہیں کرو گے تو زخم خراب ہو سکتا ہے، اسی لیے اپنی منمانیوں کو چند دنوں کے لیے بالائے طاق رکھ کر صرف اپنی صحت کا خیال کرو۔ ارمان کے ایک ہی سانس میں کہنے پر اسے مزید کوفت ہونے لگی تھی۔ اس نے سر تکیے پر رکھ دیا تھا۔ 2 ہفتوں تک وہ اس مرجھائے ہوئے مصنوعی روشنیوں سے مزین ہسپتال میں آخر کیا کرے گا؟ اسے اگلے چند دنوں کے بارے میں سوچ کر شدید اکتاہٹ ہوئی تھی۔ میں اسے یہی سمجھا رہا ہوں، لیکن مجال ہے کہ دادا کی کوئی بات اسے سمجھ آ جائے، سردار نے خفگی سے کہا تھا۔ لیکن ارمان کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ دادا، آپ یہاں اب نہیں رہیں گے، آپ میرے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے، وہ آپ کو میرے گھر ڈراپ کر دے گا۔ یاسر کو اب ہوش آ گیا ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے، اسی لیے آپ بلا وجہ یہاں نہیں رک سکتے۔ آپ کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سکون سے سردار کو ہدایت دی تو یاسر نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ دادا بھی اتنے ہی حیران ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا تم میرے ساتھ ہو، وہ بگڑ کر بولے تو یاسر کو ہنسی آئی۔ ارمان نے شانے اچکائے تھے۔ میں اب بھی آپ کے ہی ساتھ ہوں دادا جان۔ یہ ساتھ ہو تم؟ مجھے میرے پوتے سے دور کر رہے ہو۔ آپ کا پوتا کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، بڑا مرد ہے۔ ایسی 2-3 گولیاں تو آرام سے کھا کر آگے والوں کو سیدھا کر سکتا ہے۔ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ اس زخمی حالت میں خود ہاسپٹل چل کر آیا تھا؟ ڈاکٹرز اب تک حیران ہیں کہ اس نے گولی لگنے کے بعد ہوش کیوں نہیں کھویا اور یہ اتنا فاصلہ بھی عبور کر کے یہاں تک کیسے آ سکتا ہے۔ دل تو کر رہا تھا کہ بتا دوں یہ انسانی جن ہے، لیکن پھر جانے دیا۔ اب آپ جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حفاظت کی اسے نہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ اب کے ہسپتال کے اس مٹیالے کمرے کا منظر کچھ اور تھا۔ یاسر ہاتھ باندھے محسوس نگاہوں سے سردار کا بے یقین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ارمان اپنی تقریر کرنے کے بعد سکون سے دادا کی جانب متوجہ تھا۔ پھر سردار نے انتہائی خفگی سے دونوں کی جانب دیکھا اور سر چھٹک کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ جب میرے سفید محل آؤ گے تو میسم کے ہاتھ کے انتہائی خوفناک کریلے کھلاؤں گا تم دونوں کو، یاد رکھنا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن ہسپتال کے اس کمرے میں دل فریب سا کہکا گونجا تھا۔ سردار کے جاتے ہی ارمان اس کے قریب چلا آیا تھا، پھر اسے گہرا سانس لے کر دیکھا۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ سیلینا سے کتنی محبت کرتے ہو؟ واٹ؟ بکواس بند کرو اور بتاؤ کہ کتنی اچھی لگتی ہے وہ تمہیں۔ کیا گھٹیا سوال ہے یہ؟ اس کا رشتہ آیا ہے؟ وہ نہیں چونکا، انہی خاموش گہری نظروں سے ساتھ کھڑے ارمان کو دیکھتا رہا۔ تو کچھ پل بعد بڑی بے رحمی سے پوچھا تھا اس نے۔ ارمان کی چانچتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ تم واقعی اسے پسند نہیں کرتے؟ ارمان یہ کیا فضول سوال ہے؟ اب کہ وہ بگڑا تھا، اس میں کچھ بھی فضول نہیں ہے۔ کچھ ہی پل بعد واجد حسن اپنی بیوی سے علیحدگی کی خبروں کے ساتھ ہیڈ لائنز کا حصہ ہوگا اور وہ سیلینا کے پاس دوبارہ جائے گا۔ وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا تم اس سب کے لیے تیار ہو؟ اور اب کہ اس کے آبرو متعجب سے اوپر کو اٹھ گئے تھے، وہ اس گھٹیا آدمی سے دوبارہ کیوں رشتہ جوڑنا چاہے گی؟ اور اب کہ وہ بولا تو آواز میں گہری اکتاہٹ کے ساتھ تیش بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ ارمان بالکل ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہی کندھے اچکائے تھے۔ وہ کسی سے بھی رشتہ جوڑے، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی سے بھی ایسے کیسے رشتہ جوڑ سکتی ہے؟ اور وہ کیوں جوڑے گی؟ کیونکہ یہ اس کی زندگی ہے اور وہ اس زندگی کا فیصلہ کرنے کا ہر حق رکھتی ہے۔ اور وہ ارمان کے ٹھنڈے سے انداز میں کہنے پر ٹھٹک کر ٹھہر سا گیا تھا، پھر چہرہ اس کی جانب سے پھیر کر سر جھٹکا۔ اگر تم اس میں واقعتاً دلچسپی رکھتے ہو تو آگے بڑھو اور اسے اس واجد نامی بے ڈنگ کی مخلوق سے چھین لو۔ ویسے بھی وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے نہیں، سوچ کر جواب دو۔ کیا تم اسے دوبارہ واجد کی زندگی میں داخل ہوتے دیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے احتجاجاً کہا تھا۔ ارمان ٹھیٹوں کی طرح مسکراتا رہا۔ اس نے یاسر کا احتجاج سنا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اسے دوبارہ ذلیل کرے گا، اس دفعہ 50 نہیں 1000 کے سامنے کرے گا۔ ماریا اس کی زندگی پہلے ہی عذاب بنانے کے در پہ ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے جن عظیم چالوں کا سہارا لے گی، اس کا سیلینا پر کیا اثر پڑے گا، اسے بھی سوچ لینا۔ واجد کا نامی کرامی کاروباری باپ اسے کبھی بھی اپنی بہو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ وہ اسے اس کی زندگی چھوڑنے پر مجبور کرے گا۔ وہ اس پر ہر طرح سے زور ڈالے گا یاسر عالم کہ وہ یہ انڈسٹری چھوڑ دے، اور تمہیں یہ سب ہمت کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ وہ اب بس چبھتی ہوئی نگاہوں سے ارمان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا جیسے بہت محسوس ہو رہا ہو۔ اب کیا تم یہاں سے دفع ہو سکتے ہو؟ اس نے دروازے کی جانب آبرو سے اشارہ کر کے ضبط سے کہا تھا۔ ارمان نے سر اسبات میں ہلایا۔ میں دوست ہوں تمہارا، تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اسی لیے پہلے سے وارن کر رہا تھا تمہیں۔ ساتھ ہی ہاتھ چلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے انہی چبھتی آنکھوں سے کمرے کا بند دروازہ دیکھا اور پھر کوفت سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اس بستر پر رہنا اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا لیا تھا۔ اب وہ بے چینی سے ای میل چھان رہا تھا
کیا واجد واقعی ماریا کو زندگی سے بے دخل کر رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو سیلینا کی زندگی ایک بار پھر سے مشکل ہونے جا رہی تھی۔